ਪੜ पे ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਹ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਮਹਾ ਐਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਹਵਾ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਉਹ ਕਸਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਰਾੜ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲਫਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ 12 14 18 ਜੀ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ। ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਚ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਸਾਜੇ ਤਾਰਰ करके ना थे और ये तो आमिर की तस्वीर है, आपने की लुगाई में सुन लगे मैं उसने फारजू से टुट गया। तो आती भी आमिर ये तो उनके साथ ये तो अपनी ब्रांड लगाते हैं, तो इनकी तो ब्रांड तो 80-90 बंदे 100 बंदा जो है ना इनकी ब्रांड पे होता है। तो वो कसम ना लैनी गल की है और सारी बोलती बंद हो गई, गल ही ना करनी आवे भाई। नहीं उन्होंने ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹਮੈਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੇਲਾਂ ਸੱਟਣ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਹਮੈਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੂਜ਼ੇ ਨਜ਼ੀਰੀਆ ਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਪੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ईमान वास्ते, ਤੁਹਾਡੇ ਯਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੇ, ਬਤਲਾਨ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਮਿਟਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। तमाम ਬਾਤਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਰੇ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ बुराई ने खत्म ही होना है। ਇਹ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ 14 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਐਨਜੀ ਉਹ 2-3 ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਡਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸਰ ਬਾਟੇ, ਇਹਦੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਸ ਵੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਸ਼ਾੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹਰੇ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ 2-3 ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੱਢੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੈ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਮਰਜ਼ਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਰ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬਾਈਕਾਟ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲਿਆਓ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਲਓ 10-10 20-20 30-30 ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੱਚੀ ਕਰ ਛੜੋ ਯਾਰਾ। ਗੱਲ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਤਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਂ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਵਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ 17-18 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੌਜੂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आमिर भाई वो के बनया वो कोई वो उथों निकलिया जिथे वो आप खुद कह रहे कि मैं जा रहा हूं उत्थे समझ नहीं आई गल। जेड़ा वो एक मिनट मैं तुम सुने ना हुन समझ नहीं आमिर भाई आंदी मैं क्या करूं। मैं तो गल नाम करूं लेकिन तुम सुने ना फिर वो फिर साथ ही आपने बोला है कि बात बात एक घुसे बढ़ गई, मैं पैर दे घुसे बढ़ गया। उतो वापस आया कौन नहीं आया अल्लाह आलम फिलहाल तो करे दिखाई नहीं दे दूसरे आप तो नहीं करे बड़ा ही होना मलक साहब। ਮਲਕ ਤਲਕ ਤਾਂ ਆਦਰ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇ ਨਿਓ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਖੱਪਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਭੌਂ ਰਿਪੀਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਸੜ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂਗਾ ਮਤ ਬਜਾਂਗਾ ਮਤ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਰਾੜ ਜੱਟ ਦੀ ਕਿ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ? अमिर भाई बराड़ अजे ताईं ते जेड़ा है ना चल रही आई ओदी ते हुण को नहीं पता। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਜਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੇ ਫੈਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਫੜੇ अमिर भाई एक गिले तितर दी वीडियो पहुंची है ऑडियो वो तुम सुना देवां जेड़ा जेड़ा आबिद जेड़ा है ना गिला ओदी ते बहुत ही उसने घटिया जेड़ा ना झूठ बोले ने। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮਨਾ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ठीक हो गया मैं ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਆਡੀਓ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਕਾਸਮ ਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚੁੱਪ ਧੜਾ ਧੜ ਫੁੱਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਲੀ ਤੂੰ ਕਾਸਮ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੇ ਵਹੀ ਦੇਣੇ।
ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਾਸਮ ਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਆਉਂਦਾ। अच्छा जी, कर दो प्ले। आमिर भाई ये जरा सुनना, किदी बराड है, किदी बराड है? ये बराड आई जी ओ बेगैरत दे बच्चे दी के ना होदा है ओ जेड़ा के ना सू आमिर भाई शातन दी बराड सी। अच्छा ठीक है, पर तमगा देने की केड़ी लोड़, गाल गुल खदम लफज। अच्छा पहले बात मुझे ये बता, मेरी बात क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप इसको ठीक से बताएं कि शार्प शूटर ने। हाँ, ये जो शार्प शूटर है इसने मुझे खुद बताया था। इसने दो बातें मुझे बताई थी, असल में मैं दोनों बता देता हूँ। तो इसने पहली बात तो बताई थी कि यार मेरे बेटे के साथ, छोटे के साथ ये मसला हो गया। मस्जिद में जाता था तो मौलवी साहब ने ना उसके साथ बदफेली कर दिया। बच्चा अब टॉयलेट में जाता है तो उसको दर्द होता है और बैठ भी नहीं सकता, तो क्या करूं? तो मैंने इसको मशवरा दिया था, सबसे पहले आप ऐसा करो कि तुम जाओ बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाओ, उसका ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि मेडिकल जो है ये सबसे पहले है। फिर दूसरे नंबर पर मैंने इसको बोला कि जाके इसको अस्पताल में जो ले जाओ, इसका मेडिकल कराओ, अपना वहां से बाकायदा प्रूफ लो, और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन जाओ और बताओ कि मैंने कहा था अस्पताल जाके पहले ये उनसे कहो कि आपके बच्चे के साथ बदफेली हुई है, वहां से सर्टिफिकेट लो उनसे। फिर मैंने इसको मशवरा दिया कि तुम जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, FIR दर्ज कराओ उस मौलवी के खिलाफ जिस मौलवी बदमाश ने इसके बेटे के साथ बदफेली की है। मैंने उसको मौलवी को बुरा भला कहा, मैंने कहा वो खंजीर है, हरामी है, तुम उसको जेल कराओ, उसको सजाए मौत हो सकती है जिसने तुम्हारे बच्चे के साथ ये बदफेली की है। मैंने कहा बेशक मेरा और तेरा इख्तलाफ है अकायद के लिहाज से, तो मुझे पता है कि मसलक से तलक रखता है, तुम सहाबा को गाली देते हो और भी तुम्हारे जो अकायद है उनमें कुफरिया बातें पाई जाए, लेकिन मैं स्टिल तेरे बच्चे के साथ हूँ क्योंकि वो मासूम है, उसका तो कोई कसूर नहीं। फिर दूसरा इसने बताया था, हाँ चलो ऐसा ही करूंगा, फिर पता नहीं उसने किया या नहीं किया। और दूसरी बात इसने ये बताई थी कि यार महंगाई है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, कमर तोड़ दी है, तो वो कोई कहता है कोई ऑनलाइन ऐसा सिस्टम है कि जहाँ कोई औरतें जो ऐसे लोग होते हैं, कोई वेबसाइट बता दो यार यहाँ। मैं कहता है कि इसकी एक छोटी है और एक बड़ी है, तो कितना पैसे मिल जाएंगे? कह रहा था घंटे के कितने पैसे मिलते हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो इस चीज का कोई इल्म नहीं। हाँ मैंने सुना है कि पाकिस्तान में इस तरह की कुछ वेबसाइटें होती हैं, जैसे लाहौर एस्कोर्ट या कराची एस्कोर्ट, इस्लामाबाद, तो उन वेबसाइट पे जाके पता कर। मैंने उसको ये भी हाईली रेकमेंड किया था कि इस गंदे काबू में ना पड़, तो ये फिर कह रहा था कि यार कितने पैसे होते हैं रात के, कितने पैसे होते हैं 2 घंटे के। तो मैंने इसको ये मशवरा दिया था कि तू खुद उनसे रब्ता कर ले, मुझे इन चीजों का कोई पता नहीं। ये 2 बातों का इसने कहा था और मैंने दोनों बातों में इसको अच्छा मशवरा दिया। पहली बात में इसको मैंने कहा कि ट्रीटमेंट करवा, पुलिस के पास जा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवा। और दूसरी बात, जो इससे ये गंदगी में दाखिल होना चाह रहा था, इसको मैंने मना किया। मैंने कहा इस गंदगी में दाखिल ना हो। कहता नहीं यार जना भी तो होता है ना, तो इससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ घर में आएगा, पैसे आएंगे, तो जो है ना माली हालात बहुत बुरे हैं, महंगाई है वगैरह वगैरह। ये 2 बातें इसने मुझे शार्प शूटर ने खुद बताई है। नहीं, मेरा ख्याल है उसने आपको मुते का कहा था कि उनमें तो मुता जायज है ना, तो उसने कहा था कि मैं उसने और भी बातें की थी भारत, वो मैं फिर इतनी बात लंबी हो जाएगी ना, तो वो फिर वो कहता था कि शाम में गरीबा भी तो मनाते हैं, तो उसमें भी से कुछ ना कुछ वो भी तो देखो जायज है। देखिए मैं समझता हूँ कि हम उसके अकीदे पर देखे नहीं करते बात, उसकी दिल आजारी होगी। जो ये बात है ना, अब एक कंफ्यूजन है ट्रू मुस्लिम साहब, इसके ये 2 बेटे हैं, अब पता नहीं चल रहा कि ये जो येलो बेल्ट है, मतलब येलो मेडल है, इसके साथ हुआ है ये मामला बेचारे के साथ। ये देखिए, मुझे अब ये तो नहीं पता इसका छोटा कौन है, लेकिन इसने ये मुझे बात बताई थी कि छोटे बेटे के साथ हुआ है। देखिए मैंने इससे यही पूछा है जब ऊपर आया था। मैंने कहा भाई कंफ्यूजन है, लोग तजब्जुब का शिकार हैं, इसमें से कौन है छोटा येलो जिसने गले में पहना है। देखिए ये लोगों की इज्जतें उछालता था तो मुस्लिम साहब, ये शायद है, ये लोगों की इज्जतें उछालता था। देखे आज इसके अपने बच्चे की इज्जत जो है वो दांव पर लगी। आमिर नजीर साहिब, अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई छोटा जी एस गल दे ते अब सलाह ते फिर अलीम भाई नाल गल कर ले।
ਇਸ ਅਲੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਮੈਨ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ WhatsApp ਕਿੱਥੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਮਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ अस्सलामुअलैकुम ਮਰਦਾਈ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਲੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਟੈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਜੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ जी आमिर भाई कैसे मिजाज हैं? ਜੀ ਠੀਕ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ मिजाज शरीफ दसो पहले। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? हाँ सवाल ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਖਲੀਫਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਵਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਰਤਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮਰਤਬਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਬਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਨੇ ਲਿਖੋ, ਸਵਾਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਕ ਬਿਲਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਲਕ ਬਿਲਾ ਦੀ ਕਰੋ। ਤਕਰੀਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਤਲਕ ਬਿਲਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਮਊਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਲਕ ਬਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਬਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਬਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਇਸਤਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। साहब दी बेइज्जती ने ਅੱਛਾ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ signal। ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ। ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਬਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਇਸਤਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਵਾਦ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਲਕ ਬਿਲਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਬਿਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਇਲਹਾਮ ਪੂਰੇ ਇਲਹਾਮ ਬਲਮੁਲਮ ਨੇ, ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਜ਼ੀਆ ਤੌਰ ਤੇ वालेकुम मैं कलीम भाई ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਸੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬਰੋਡ ਤੇ, ਗਾਲਬਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੋ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਕਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਗਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਥੱਕੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੋਰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦੱਜਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਤਰਬੀਅਤ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੈ ਕੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਜ਼ਾਬ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਦੱਜਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਾਂ ਮਾਮੂਰ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ। ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਅਲੀਮ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਾਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਜ਼ਾਬ ਕਹੋ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਹੋਰ ਕੈਫੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਲਹਿਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਅਤਨ ਸੱਚਾ ਮੁਲਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਲਹਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਫਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਕਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਇਜਾਜ਼ੀ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਦਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ, ਅਨੋਖੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹੋ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਕ ਸਫਲ ਅਸਫਲ ਮਿਨ अन्नार, ਮੁਨਾਫਕ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲਾ ਦਰਜਾ ਉਹਦਾ। ਕਿ ਮੁਨਾਫਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਸਮ ਸੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਜ਼ਾਬ ਆਖੋ। ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਰੀਫ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੜਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮੂਰ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੁਲਹਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੁਨਕਰ ਫਾਸਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਾਣੇ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਜ਼ਾਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕਜ਼ਾਬ? ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਝੂਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੁਨਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਬਈ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ दूं। ਹਾਂਜੀ ਤਾਹਿਰ भाई, अलीम भाई 2021 से बहुत पहले के बाद अब हम इंतजार करेंगे 2028 से बहुत पहले। 2028 का देखो ड्रामे बड़ा मुनाफकत है। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਰਮੂਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। 2021 ਸੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਫਰਮੂਦਾਤ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਰਮੂਦਾਤ? ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੁਫਤਰੀ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਿਰकुन ਜ਼ੁਲमुन ਅਜ਼ੀਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹੀ ਗੁਨਾਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਝੂਠ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਝੂਠ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾਗੇ, ਸੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ? ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੀਚੂ ਕੀ ਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਰਾਈਟ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਝੂਠਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੁੱਪ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਝੂਠਾ। ਹਾਂ ਪਟ ਰੱਖ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੈਕਟਰੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਬਈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਜਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੜਦੇ ਅੱਧਾ ਤੀਰ ਘੰਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੋਗੇ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਨਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਵਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਡੱਕੋ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸਰੀਅਤ ਦੀ, ਖਾਜੀਅਤ ਦੀ, ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਦੀ, ਨਜਦੀ ਫਿਤਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪਾਸ ਕਰਾਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2028 ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੁਤਫ ਆਇਆ ਔਰ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਜੁਮਲਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਿਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਨਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਮਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਤਿਹਾਦ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਕੱਢੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਅੰਗਾ ਹੀਜੜੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦੱਜਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਚ ਮਾਰਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬਾਦੀ ਖਿਲਾਫ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹ ਚ ਇਹ ਵੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ। ਡਿਮਾਂਡ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਵਣ ਦਿਓ। ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕਹੋ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਕ ਸਾਦਕ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। वो कहते हैं हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸੇ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੂਰਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟੋਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੂਰਾ ਚ ਬੈਠੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਭੱਗੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮਾਮੂਰ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਸਮਝੋ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜੜਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਧੀਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾ ਫੋੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 80 ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਭੱਗੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਵਾਇਫਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਵਾਇਫ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, 3 ਬੰਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ नहीं यार ऐसी लड़ाई कारी भाई असल बात है जो आप समझते हैं ना, सादिक को सादिक कहें, काजिब को काजिब कहें, और यही मोमन का काम है। अगर आप मोमन हैं, अगर आप हिजड़े हैं तो फिर आपने काम पे लगे रहे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी डिमांड क्या है और आपको गुस्सा क्यों आ गया इतना। मैं आपको डिमांड बताता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आप जंबा साहब को सादिक समझते हैं ना तो फिर उनके पैरोकार बने,
अगर आप समझते हैं कि वो उन्होंने खुदा ताला पर झूठ बांधा है, इफ्तरा किया है, सबसे बड़ा जुल्म है अल्लाह ताला पर इफ्तरा करना। इसका मतलब है वो एक काजिब और दज्जाल शख्स है, और ये लफ्ज आपके मुंह से निकलने चाहिए अगर आप समझते हैं। अगर आप में ये जुर्रत नहीं है, इसका मतलब आप एक मुनाफिक इंसान है। तो वो मुनाफिक का दर्जा जो होता है ना, वो जहन्नम में सबसे नीचे। अब मैं जवाब देता हूँ आपको। अब मैं जवाब देता हूँ। पहली बात आखिरी बात का पहले देता हूँ मुनाफिक की बहस जरा ये आमिर नजीर साहब से किसी दिन कर लीजिएगा। मुनाफिक आप बिल्कुल फैसला इसका नहीं कर सकते कौन मुनाफिक है कौन नहीं मुनाफिक है, ये आप पहले जवाब मुझसे इसका ले लें। दूसरी बात है, अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जब्बा साहब को हम मुनाफिक, काज़िब और गालियां निकालें जो आप निकालते हैं, ये डिमांड वाकई आप जब्बा साहब को मानते हैं? काज़िब और दज्जाल कहना गाली नहीं है, ये हकीकत है, हल्का इज़हार है। और वो एक शख्स खुदा पर इफ्तरा कर रहा है, उसको आप सच्चा कहेंगे? अगर आप मानते हैं कि एक शख्स खुदा पर इफ्तरा कर रहा है, आप क्यों उनकी तकलीफ करना चाह रहे हैं उनको? अलीम साहब, एक शख्स खुदा पर इफ्तरा कर रहा है, आप उसको काज़िब नहीं कहेंगे? अच्छा, ये गाली होगी? कर रहे हैं इफ्तरा खुदा पर, कर रहे हैं? नहीं, आपके ख्याल नहीं, हमारे ख्याल में वो बिल्कुल सच्ची है। यार मेरा ख्याल आपने कहाँ से देख लिया है? मेरा आपके ख्याल में क्या है? मैं तो जंबा साहब झूठे कोई हैं, ख्याल अपना पेश किया है। जंबा साहब अपने दावा में सच्चे हैं कि झूठे हैं? आप खुद ही डिफेंसिव हो रहे हैं। मेरा ख्याल पहले बताएं। एक सवाल मैंने आपसे किया है, जंबा साहब अपने दावा में सच्चे हैं कि झूठे? मैं उसका जवाब देखे ना, अभी तक जितने जवाबात आपको मैं दे चुका हूँ, इसमें बताएं कि आपने इतना कौन सा मुश्किल मेरा सवाल है, कौन सा सच्चा है या देखा झूठा है, इसका इतना मुश्किल सवाल है, उसके लिए आपको एक जंबा साहब पे तहकीक जारी है भाई, जंबा साहब पे एक तहकीक जारी है। जब तक जंबा साहब पे तहकीक नहीं होती, मैं उनको काज़िब दज्जाल नहीं कहूंगा भाई। हाँ, तो उनका आप मजाक उड़ाते हैं, उनको आप साबित करते हैं कि जी इन्होंने झूठ बोला, इजादी लड़का उनका हो गया जी, उनको हवाएं से बातें करती है, ये मजाक करते हैं ना आप उनके साथ। यार हवाएं नहीं, ऐसे ही मिर्जा साहब से मुर्गी बातें करती थी, उसका मजाक नहीं। देखो उनसे हवाई बातें नहीं करती तो नहीं, तो मिर्जा साहब से मुर्गी बातें इसमें रुके अब मिर्जा साहब मिर्जा साहब से मुर्गी बातें मैंने गलत किया इसमें? सुनो ना, एक सेकंड रुक जाओ, आराम से। क्या जंबा साहब से हवाई बातें नहीं करती? नहीं, तो आप उनको मजाक है, आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे, देखें जी वो उनसे हवाएं बातें करती हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं। लो जी, है ना, इसमें कहाँ पे मजाक है? इसमें क्या मजाक है? सच्चा एक हकीकत है, बातें करती हैं हवाएं। अच्छा, तो आप ये समझते हैं मिर्जा जंबा साहब से हवाएं बातें करती हैं? यार वो बता रहे हैं आप समझते हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा। यार बिल्कुल मैंने यही कहा, जो उनको कोट की है वो आप इसके ऊपर यकीन रखते हैं कि जंबा साहब से हवाई बातें करती हैं? यकीन यार वो कह रही हैं तो करती होंगी, क्यों नहीं करती होंगी? इसका मतलब आप वो सच्चे हैं अपनी बात में। यार एक बात करने की इजाजत दें, फिर अगर आप कहते हैं वो कह रहे हैं तो सच्ची ही होगी। तो फिर जब आप वो कहते हैं कि मैं खुदा की तरफ से 15वीं सदी का मुजद्दिद हूं, आप क्यों नहीं मानते? चौहान साहेब मजाक। अलीम भाई एक बात करने दीजिए, जब वो कहते हैं मैं 15वीं सदी का मुजद्दिद हूं, क्यों नहीं मानते? हवाएं बातें करती हैं, वो तो मान लेते हैं आप। देखें अलीम भाई, बात यह है कि जहाँ तक संजीदगी से बात का ताल्लुक है, खाकसार ने रिकॉर्डेड और जंबा साहब तक ये पैगाम पहुँचाया कि उनके अपने खुतबे के मुताबिक उनकी अगर ये पेश गोई जो उन्होंने बताई, ये अगर वो झूठी है तो उनके सारे दावे झूठे हैं, ये उनके फरमुदात के मुताबिक। फिर मैंने मशवरा करने के बाद खालिद वास्ती साहब और मलक मुनव्वर साहब और खालिद एमडी साहब, जिनका जंबा साहब अक्सर जिक्र करते हो, उनके कंसेंट के साथ मैंने ये कहा कि ये एक वेरीफाइबल कहाँ से हो गया? एक मिनट या अलीम साहब, ये अगर ये सच्चा साबित हो जाए, साहब जो बात कर रहे हैं, अलीम भाई आपके जैसे लौंडे लिपाड़े अगर कुछ कहेंगे तो यार अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लौंडे लिपाड़े कुछ कहेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप अपनी वेरीफाइबल को बच्ची बना के जहाँ मर्जी इन्होंने बात नहीं करने देनी, सुन नहीं सकते। तो भाई क्या इतनी लंबी बात मैंने नहीं सुनी, 1000 दफा ये बातें मैं सुन चुका हूँ। वेरीफाइबल तो इनके लिए होगी ना। अलीम साहब मेरी आवाज आई? मिर्जा साहब के जो मिर्जा साहब के इनकार करने वाले सारा कुछ वेरीफाइबल दिखाते हैं। आमिर नजीर साहब ऐसे वेले हर वक्त वेरीफाइबल फैक्ट बताते हैं मिर्जा साहब के मुतालिक, आप क्यों नहीं उनको दज्जाल कज़ाब मान लेते?
ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ मिर्जा ਕਰੋ साहब को ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ वेरीफाइबल दे रहा मैं किसी को मिर्जा कुछ नहीं साहब कह के रहा माल्टा उन्होंने निकाला दरख्त से तोड़ लिया वेरीफाइबल फैक्ट दिखाएं मुझे इसकी यार आपने मैंने तहकीक गल की नहीं है करने देनी तुसी यार क्यों मतलब कि मैं तहकीक की है इसकी टोनी साहब आपने इसकी तहकीक की है मिर्जा साहब ने बगैर मौसम खालिद एक दरख्त से माल्टा निकाल लिया था ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਐਮਡੀ और डॉक्टर खालिद ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਭੰਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ क्या है ਲਿਖਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਲੀ ਕਿ और डॉक्टर खालिद को मामूर में अल्लाह है ਯਾਰ ਯਾਰ डॉक्टर खालिद मामूर में अल्लाह है ਖਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ जंबा साहब तो मामूर में अल्लाह है डॉक्टर खालिद कौन है टॉम डिक एंड हैरी कोई भी आके उठ के कह देगा कुछ हम उसके हमारे लिए कुछ की वक़्त है अच्छा गल नहीं कर जंबा साहब अल्लाह ताला के मुरसल और मामूर हैं और वो जो भी बात कहते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होती है और मैनू गल करन दियो ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕੇ टोनी एमडी ये लॉन्डे पाड़े की क्या हैसियत ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ है اخلاق ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ लॉन्डे पाड़े की कोई हैसियत नहीं लेकिन बारी जंबा साहब मामूर बारी में बारी बारी बात और जो भी कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬਈ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 100 ਦਫਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਤੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਔਨ ਰੈਕੋਰਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਆਈ ਟੁਕ ਇਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਵਾਸਤੀ ਮਲਕ ਮੁਨੱਵਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਐਮਡੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਦਵਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਤ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਹਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ आपकी मतलब कोई हया नहीं आती औकात क्या है गंदी नाली के कीड़ों 80 करोड़ की सजा दा मुस्तहिक गंदी नाली के कीड़ों तुम्हारी औकात क्या है कि तुम हम बैत कर लेंगे हमें नहीं चाहिए आपकी बैत मेहरबानी करें लड़ते ने ऐस बेगैरत नु गंदी नाली के कीड़ों हमें तुम्हारी बैत नहीं चाहिए लानत टके की तुम्हारी फीम ज़्यादा फोड़या 80 करोड़ की सजा दा मुस्तहिक लानत अल्लाह काज़िबिन और गंदी औलाद न मजा न स्वाद 1.25 लाख मैरीलैंड दी गंदी औलाद ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ मैरीलैंड ਦੇ ਭੰਗੀ ओ भाई असल बात ये है तुम्हारी वेरीफाइबल के हमें क्या परवाह है तुम 3-4 बंदे बैठ के वेरीफाई करना शुरू कर दो तो हमारी टके की औकात है तुम्हारी इतना गुस्सा मामूर में अल्लाह जब्बा साहब है वो जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बारी बारी आपको हक ही नहीं है वेरीफाई करने का चौहान साहब ये अच्छी हरकत नहीं है आराम से अखलाक से बात करनी चाहिए अलीम साहब मुझे ये बताएं जंबा साहब तो मामूर में अल्लाह है आप तो कुछ भी नहीं है आप उनकी बातों को वेरीफाई कर सकते हैं देखा कर सकते हैं कर सकते हैं बैठे अच्छा तो फिर मिर्जा साहब की वेरीफाई बातें करके दिखाएं आपको गुस्से चढ़ जाते हैं आप आगे से ठीक है और फिर मिर्जा साहब से शुरू करते हैं वहां से वेरीफाई करने की मिर्जा साहब ने कहा था मेरी एक पेश कोई भी झूठी निकली तो मैं झूठा बात जंबा साहब पे हो रही है मिर्जा साहब ने कहा फलाने तो क्यों जंबा साहब तो मिर्जा साहब की दुआ के नतीजे में आए हैं अगर मिर्जा साहब सच्चे साबित हो जाए रुक जाए खामोश हो जाए ना जरा बात शुरू से कर लेते हैं बात शुरू से अब आपको गुस्से किस चीज के चढ़ते हैं क्या मसला है गुस्से की क्या बात है आप अपने आप की आप अपने आप को कुछ समझते हैं कि आपकी राय से जंबा साहब की सच्चाई या उनकी सदाकत या उनका झूठ होना साबित होगा भाई आपकी कोई औकात नहीं है आप एक लौंडे लपाड़े की तरह आपकी औकात है ओ भाई किसने कह दिया जंबा साहब को सच्चा समझते हैं झूठा समझते क्या फर्क पड़ेगा इसमें मसला क्या है किसने आपको कहा है कि कोई फर्क पड़ेगा किसने कहा है ये हाँ हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं तो ये अभी टोनी आके कह रहा था मैं 3 फलाने हम बैत करने के भी तुम गंदी नाली के कीड़ों को किसने कहा है हमारी बैत करो कोई लिखे इंसान किसने कहा अलीम साहब आपको किसने कहा है हमारी बैत करो बात कर लेना
भाई हम कहते हैं आप लेकिन क्या फांसी मसला है अभी? हैं, आप पिलाने डालते हैं, भैया आप खामोश, अभी भी खामोश नहीं हो रहे, दोनों ने इकट्ठे तो एक आप साथ कौन सा हो बात रहे हैं करनी है। खामोश? आप तो खामोश हो मैंने रहे तो हैं। आपसे कहा है कि जरा खामोश हो, बात करने दे, तब से बोल रहे हैं, हाँ तो मेरी पहले बात सुन लें, सुनते नहीं है। हाँ मेरी बात सुन लें फिर आप बोलें, ठीक है? सुनाए सुनाए हाँ सुनाए सुनाए, क्या अच्छा, सुनाना चाहते हैं मैं आप? आपको ये सुनाए। कहता हूँ अभी ये जो टोनी भी कह रहा था, आप भी इसी लाइन पे चल रहे हैं ना। देखें फलाना एमडी, फलाना ओ, हमने ये मिलके सब ने हमने ये प्लान बनाया है, हमने ये तहकीक की है। भाई अगर ऐसे ही लोगों की तहकीक के नतीजे में मुरसल और मामूर में अल्लाह की सदाकत का फैसला होगा, तो इस वक्त 2 अरब मुसलमान मिर्जा साहब को कज़ाब और दज्जाल समझ रहे हैं, उनकी सब पेशगोइयों को झूठा समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने खुदा पे इफ्तरा किया। तो आप वो 2 अरब मुसलमानों की बात क्यों नहीं मान लेते? हमें तो कहते हैं हम आप जैसे 4 लौंडे लपाड़ों की बात माने कि जी देखें हमने तहकीक की है, तो फिर आप ये 2 अरब मुसलमानों की जो साफ ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद एक कज़ाब और दज्जाल शख्स था, खुदा पे उसने इफ्तरा किया, उसकी सारी पेशगोइयाँ झूठी थी, एक भी पूरी नहीं हुई, तो फिर आपको वो तस्लीम कर लेना चाहिए। इतने सारे लोग कह रहे हैं, बेवकूफ़ तो नहीं है वो? बताएं, सवाल का जवाब दें अब। बहुत अच्छा, कोई आपसे इख्तलाफ नहीं है, आपकी सारी बातें ठीक है, कोई सहमत हूं आपसे, ठीक हो गया। अब आप खामोश होंगे, मुग्गी गल के और कुछ बोलना है तुसी, और बोलना है तो बोलो, उसके बाद बोलना नहीं बेचा है, ठीक है। अब आपने म्यूट आप किया है, मैं बोले तो आप समझ रहा हूँ। बोलें, फिर आप बार बार क्यों मुझे बस बुला ठीक रहे है, हैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बात ये है तारिक चौहान साहब, आपकी जैसे छेड़ बन गई है, आप इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे ये आपकी छेड़ है, बुखला जाते हैं आप, पता नहीं किस किस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं, कोई बात किसी ने की नहीं है, आगे सिर्फ इतना ही आपने डिमांड शुरू कर दी है कि आप मिर्जा आप उनको चंबा साहब को, कज़ाब को, दज्जाल को, ओ भाई नहीं कहते दज्जाल को कज़ाब, ये शराफत है। और मुझे कोई एक फिक्रा बता दें जो मैंने गलत बोला उनके लिए, कोई एक फिक्रा बताओ आप, बताओ, उस फिक्रे में बात कर लेते हैं। अब आपने वो फिक्रा कौन सा निकाला है कि हमारी बातें करती हैं, इसमें क्या फिक्र है मेरा बीच में, बताएं। तो इतना हाइपर होने की मेरा नहीं ख्याल आपको कोई जरूरत है। और कोई गुस्से हो रहे हैं, पीड़ा और पकियां और कोई इस तरह के मामलात है, या आपको समझ नहीं आ रही कि अगला बंदा आपको गालियां क्यों नहीं निकाल रहा। ये डिमांड करना वैसे ही एक मजे का खेज है कि जम्बा साहब के मानने वाले डिमांड कर रहे हैं कि जब जम्बा साहब को आप झूठा समझते हो तो उनको झूठा झूठा कहो। तो भाई कह देंगे जब कहना होगा, अभी 2028 का इंतजार है, अभी उन्होंने ऊपर उठना है, ऊपर जब उठेंगे, ऊपर जाएंगे, तो जाएंगे, तो फिर उसके बाद बात करेंगे, कोई मसला नहीं है। इतनी बात है चौहान साहब, देखें ऐसे बात हो सकती है बारी बारी ना, अब बोले आप, मैं सुनता हूँ आपको। जी जो मैंने आपसे सवाल किया उसका तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो आपने वही मैं बात सहमत हूं दोहराई उससे, जो मैं पहले कोई भी इख्तलाफ आपने ही नहीं है आपसे, 3-4 दफा। अब कोई सुन लें मेरी इख्तलाफ ही बात नहीं है ना, आपकी बातों से, मेरी बात बिल्कुल। सुन लें। मैंने ये कहा है, अभी आप ये डिस्कस कर रहे थे, आपने भी कहा है मैं आपको साबित करूंगा एजाजी लड़का, वो सारी बात आप कर रहे थे ना। यही ये टोनी हर वक्त ये बकवास करता है। हम 3-4 लड़कों ने बैठ के ये फैसला किया है, ये देखें देखें जी ये वेरीफाई बकवास करता है, ये अच्छे अल्फाज नहीं है, इस बात के आपने जवाब नहीं दिया। बकवास मैं करता है, कहता ये हूँ ये अच्छी बात अगर नहीं है। 3-4 लौंडे लपाड़े इकट्ठे होके ये फैसला करें कि मिर्जा साहब झूठे थे, तो क्या हम मान जाएंगे उनकी बात? अभी 2 अरब मुसलमान कह रहे हैं मिर्जा साहब झूठे, हम कहते भी हमारी तरफ से तुम 2 अरब मुसलमान झूठे हो, हम उनको सच्चा समझते हैं। अब्दुल गफार जंबा साहब मामूर में अल्लाह हैं, 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, और ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मान है, मसीह इब्न मरियम है। वो खुदा ताला से वही पाकर खड़े हुए हैं और अल्लाह ताला की फेली शहादत उनके साथ है। आप लोगों की क्या जुर्रत है कि आप ये कहें कि वो जी ये हम वेरीफाई करेंगे? भी तुम्हारी जुर्रत ठीक है, कैसे है कि तुम वेरीफाई करो? या तो तुम ठीक कहोगे है, कि ये सच बोल रहा है, अपने दावे में सच्चा है, या तुम कहोगे कि ये झूठा है। आप ठीक है, मिर्जाइयों की इतनी जुर्रत नहीं है, क्योंकि आपको हिजड़ापन आपकी रगों में वदियत कर गया। आपका खलीफा हिजड़ा है, उसके घर में रजिस्टर्ड डाक से मोबाइल का चैलेंज अच्छा 2018 में भेजा, अभी तक वो अच्छा, हिजड़ा खलीफा और उसके हिजड़े जो पैरोकार सारे के सारे अंदर घुसे हुए हैं, कोई भी सही नहीं है, निकला वहां पे। तो यही सही है, हिजड़ापन आपका है। आपकी ये जुर्रत नहीं है, जंबा साहब को आप काजिब और दज्जाल ही समझते हैं, लेकिन आपकी जुर्रत नहीं है कि आप ये बात सही है, आप कहें हम 2028 तक इंतजार करेंगे। भाई तुम्हें तो हम, मैं और आप, हमें अगले सांस का पता है कि हम जिएंगे ठीक या है, नहीं, कुछ नहीं पता। तो भाई इस वक्त आपने फैसला करना होता है
कि आप सच पे हैं या झूठ पे। मैं 2028 तक फैसला करूंगा। भाई तुम्हें किसी ने ठेका देकर रखा है कि 2028 तक तुम जिंदा रहोगे, कोई पता नहीं हमारा। भाई इस वक्त हमने देखना है कि इस वक्त सच्चाई क्या है। हम शायद 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के बाद हमारी जान निकल जाए, तो हमने उस वक्त फैसला करना है। हम बैठे रहेंगे 2028 ये सारी आपकी जो बातें हैं ना, ये इनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। ये आप सारा मजाक कर रहे हैं। आपके ख्याल में दीन जो है वो एक मजाक का नाम है, वो आप करते रहते हैं हर वक्त। सही है। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप क्यों बोल रहे हैं? जब मेरी बात खत्म हो मैं जाएगी अप्रिशिएट कर रहा हूँ और बोले जारी रखें। नहीं फायदा क्या, जब मैं बोलता जा रहा हूँ आप बीच में बोलते जा रहे हैं। सुन रहा हूँ बोली जाए। मैं कसम सुन रहा हूँ। नहीं मैंने क्या कहा है आप बता सकता हूँ, बताएं, दोहराएं मैंने क्या कहा है। मैं आपको बता देता हूँ ना आपने क्या कहा। आपने वही जो पहली वाली बात है सारी वो रिपीट की है। 3 लफ्ज आपने बीच में क्या बात है, उसका जवाब तो आप नहीं देते। मैं यार अभी आपको बता रहा हूँ तो बताने तो देना, क्या हो गया। पहली वाली बात को आपने कॉपी करके पेस्ट किया है, जो पहले भी आप बात कर चुके उसको आपने रिपीट करके टाइम जाया किया 3 मिनट। उसके अलावा आपने जानी, हिजड़ा, बकवास के अल्फाज ऐड किए हैं। तो मैं ये सोच के हंस रहा था कि अगर ये अल्फाज मैं अपनी बात में इस्तेमाल कर लूं अपनी टर्न में जंबा साहब के लिए, तो शायद मेरी बात में वजन पैदा हो जाएगा और लोगों को लगेगा यार ये बात तो बड़ी पक्की कर रहा है। तो उस बात पे मैं थोड़ा सा मुस्कुराया था। तो ये आपने बात की है और 4 लौंडे लपाड़े वो फैसला करें तो क्या उनकी हैसियत है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं इसका क्या आपको जवाब दूं? आपकी बात से सहमत है, कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है आपकी बात से। अच्छा आप वो बात बताएं कि आपको इतनी मिर्चियां क्यों लग जाती हैं? ये एजाजी लड़का सुन के, एमडी सुन के कभी कुछ कहना शुरू हो जाते हैं, कभी कोई बातें आप करना शुरू हो जाते हैं। अभी मैंने आपसे जो सवाल किया था उसका तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या फिक्र है जिससे आप इतने बुखलाए हुए हैं, इतनी आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं? क्या फिक्र है? वो हवाएं बातें करती हैं तो बिल्कुल करती हैं हवाएं बातें। वो लड़की जो थी उसको अल्लाह मियां ने पैदाइश के वक्त लड़का बना दिया था तो बिल्कुल बना दिया था। क्या मसला है इसमें? आपको आप खुद मानने को तैयार नहीं है। हमारी बातें करती हैं। 2028 में उन्होंने ऊपर उठना है 2028 में गलबा आना है, फिजिकल गलबा आना है तो आना है, ठीक है। मक्का मदीना में उन्होंने रोजा रसूल में दफन होना है जंबा साहब ने, यही बातें मैंने की हैं। क्या मसला है इसमें? अब लेकिन वो अल्फाज मैंने इस्तेमाल कर रहा, आप दोबारा शुरू करें, हम दोबारा सुनेंगे। जी मैंने आपके खलीफा को हिजड़ा कहा है और मैंने सबूत भी साथ दिया है। आप जंबा साहब को बिल्कुल हिजड़ा कहें, साथ बताएं उन्होंने क्या हिजड़ापन किया है। वो तो हर वक्त ललकार रहे हैं आपके मिर्जाई हिजड़ों को और आपके हिजड़े खलीफा को। उसके घर रजिस्टर्ड डाक से मोबाइल का चैलेंज भेजा। इस हिजड़ा कौन हो गया फिर? आपके पास सबूत है वो जंबा साहब हिजड़े हैं तो जरूर बताएं। आप कहें जंबा साहब हिजड़ा है पर ये है उसका सबूत। मैं तो आपका सबूत दे रहा हूँ। आपका खलीफा भी हिजड़ा है, आप भी हिजड़े हैं। आप कैसे हिजड़े हैं वो भी हम आपको बता देता हूँ। आप हिजड़े इस वजह से हैं कि एक तो ये है कि आप मुसलमानों को कहते हैं नहीं जी हम तो इनको मुसलमान समझते हैं। मिर्जा साहब कह रहे हैं काफिर हैं ये, आप कहते हैं नहीं हम तो इनको मुसलमान समझते हैं। ये हिजड़ापन होता है, साफ बात नहीं। मैं तो साहब आमिर नज़ीर को कहता हूँ मेरे लिए तुम फांसी को काफिर हो। आप क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप हिजड़े हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हिजड़े ना होते तो आप जंबा साहब को, जिनको आप कादिब समझते हैं और हर वक्त साबित भी करते रहते हैं, उनको भी आप कहते कि जंबा साहब को मैं काज़िब और दज्जाल समझता हूँ। और मुझे खुदा की कसम है मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि आप एक तरफ हैं, आप बीच की लाइन में नहीं हैं मुनाफिकों की तरह ग्रे एरिया में। दीन का जो मामला होता है ना वो तो या हक होता है या बातिल होता है। जो बीच में जो होते हैं ना लोग वो उनको हीड़े ही कहा जाता है, बीच वाले लोग। आप वो बीच वाले लोग हैं। अब आप दोनों बातों का मेरे जवाब दें कि ये दुरुस्त बात है कि नहीं। जंबा साहब को हिजड़ा साबित आप करें और जरूर हिजड़ा कहें इस बात का, और दूसरे का आपका हिजड़ापन जो मैंने बताया उसका भी जवाब दें। मैं अपने हिजड़ेपन का भी जवाब देता हूँ और जंबा साहब को भी हिजड़ा साबित करता हूँ। और बाकी बकवास और जानी का अल्फाज नहीं आए आपकी इस बारी में, वो भी अगली दफा आपने दोबारा इस्तेमाल करने हैं। ये आपने ख्याल रखना है। अल्फाज कम थे, जानी और वो दूसरा नहीं आया। हाँ खलीफा जानी आपका वो दूसरा खलीफा जानी था, जंबा साहब को हिजड़ा साबित करते हैं। चले उसने तो खुद कहा जंबा साहब को हिजड़ा आपकी
यार चौहान साहब, क्या ठीक है आप? और तबीयत भी ठीक है ना? अभी आप जवाब नहीं देंगे, आप मतलब बेहतर बस नहीं, मैं दे रहा हूँ पूरा जवाब, जवाब दे आपके रहा लिए हूँ। मजाक है सारा पहली कुछ। बात आपने मुझे नहीं मजाक, यार क्या मजाक है? मैं कोई बात, यार मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ, आपको मजाक लगता है, गुस्सा कर जाते हैं आगे से। देखो आपने दो बातों का मुतालबा किया है, एक ही आपने कहा है कि जंबा साहब को मैं हिजड़ा साबित करूं, और दूसरा आपने कहा है कि मैं हिजड़ा नहीं हूं, उसका मैं सबूत दूं। ये आपके दो सवालात हैं, ये ठीक सवालात हैं आपके, ऐसे ही है? एक तो इधर मैंने बता दे, कहा आपका खलीफा हिजड़ा बताएं। है, उसका मैंने सबूत दिया। अच्छा, दूसरे मैंने साबित किया आप हिजड़े हैं, वो आप उसका भी मैंने सबूत दिया। नहीं वो दो सवाल तीसरी बात हिजड़े वाले आपने वो ये सब कही था। है कि अगर मैं जंबा साहब को हिजड़ा कहूँ तो कैसा होगा। मैं कहा हाँ, उनको आप हिजड़ा बिल्कुल कहें और साथ बता भी दें इस तरीके से वो हिजड़े हैं। हाँ तो बताएं। ठीक है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में सवाल थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हम दोनों भाइयों में। आपके जो पहले दो सवालात थे ना, वो ऑडियंस जो है वो जानती है, वो इसकी तायीद करें। आपने पहले कहा है कि दो आपने साबित चीजें करनी है, एक जंबा साहब को हिजड़ा साबित करना है, और एक आपने ये साबित करना है कि आप हिजड़ा नहीं है। ये असल में दो बुनियादी सवालात हैं, मैंने आम ये नहीं कहा, सवालात फिर हैं। आप झूठ बोल रहे यार हैं। ये आपने कहा है यार, ना नहीं, करो ना, मैंने ये ये आपने कहा कहा। है, मैंने अरे आपके बुनियादी दो खलीफा को सवालात हिजड़ा हैं हिजड़ा कहा वाले। और उसका सबूत दिया। यार अभी आपने कहा है, आप उस पहले आपने सबूत ये नहीं को कहा था। निगेट करें, ये बात है। दूसरी बात है, मैंने आपको भी हिजड़ा कहा, उसका भी बताया किस वजह से। मैं आपने बताता हूँ, वही कहा ना। हम जंबा साहब को देखो हिजड़ा कहें तो कैसा लगेगा। मैंने कहा हाँ जरूर कहें, देखें और देखें, साथ अब बता भी अब दें आप कि इस ना, तरीके से वो अब आप हिजड़े घूम हैं। गए, आपको ये नहीं पता कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं साथ में रिकॉर्ड कर रहा तो हूँ। चलो अब रिकॉर्डिंग मैं ही क्या है, अभी आपको अभी अभी भी अभी अभी आपकी भी बात आपको हो रही मैं, है। अगर आप मुझसे अगर आप मुझसे ये मुतालबा करें या इसके बाद भी, तो हम मैं इधर ही छोड़ते हैं बात को, कोई शर्त नहीं है इस पे। लेकिन वो आपको मैं आपके दो बुनियादी सवाल तो जो आपने मैंने उठाए हैं, बड़े तीनों अहम सवाल सवाल हैं। आपको सामने दोबारा नहीं दोहरा आपने दिए, दो अब सवाल फिर उठाए थे यार, मजीद नहीं नहीं, दोहराऊं। मैंने रिकॉर्ड किया है इसको, मैंने रिकॉर्ड किया है। हाँ तो बस आपके ठीक दो है, बुनियादी रिकॉर्ड करके सवाल थे, सुन ले और चलिए फिर मैं दो जवाब दे दें। दो दो बुनियादी सवाल जो आपने उठाए हैं मैं उनको एड्रेस कर देता हूँ। एक आपका मुतालबा था मुझसे कि मैं जंबा साहब को हिजड़ा साबित करूं, नहीं, नंबर मैंने एक, ये तो ठीक है कहा मेरी ही नहीं, बात? मैंने तो ये कहा ही नहीं, आप यार फिर झूठ यार बोल उसका रहे हैं। सबूत दूं, उसका सबूत दूं? नहीं मैंने, हाँ नहीं, मैंने क्या कहा कहा है था, दोबारा बताओ, पहले शुरू मैंने से जो बताओ, बात शुरू की से, ना उसका सबूत दें। शुरू से, खलीफा शुरू को से बताएं क्या हिजड़ा मसला हमने है। साबित किया, मैंने सबूत दिया। आप बताएं वो सबूत ठीक है कि नहीं। अच्छा ठीक है, ये मैंने जवाब देना है, एक सवाल हो गया। अगला, हाँ ये जवाब दें। वो हिजड़े वाले जंबा साहब को कैसे साबित करना है वो हाँ बताओ, वो वो जरा तो उठा कहते, के वो तो वो आपने कहा था तफसील में बताए अगर ना, वो आप नहीं हमारे समझ आई ना खलीफा को बात की। हिजड़ा कह रहे हैं, हम जंबा को हिजड़ा कहेंगे, तो मैंने कहा जरूर कहें। ये मैं मैंने भी कब साबित कहा कर है, रहा हूँ आपका ये खलीफा मैंने कैसे कब हिजड़ा कहा है। है? आप भी साबित कर दें कि जी जंबा साहब इस तरह हिजड़ा है। आप बताएं। नहीं मेरे ख्याल में कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा हमें हो गई है। चलो पहली तो आपने ये मुझसे पूछा है कि अमर मैंने जी ये साहब, बताना है कि मौका जंबा दीजिएगा साहब, अनइंटरप्टेड, राइट? तो फिर इनको ठीक है, फिर बात करते हैं मेरा हम। जरा मुनाजरा थोड़ा सा मजीद चल लेने दें ताहिर भाई, तो उसके बाद देखें। आपको चौहान तो साहब थोड़ी सी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं हो गई बात है कर रहा हमें। हूँ तो आपको समझ नहीं आ रही, चौहान तो आपका ये हाल चौहान है। साहब थोड़ा सा क्योंकि मसला आ रहा है बीच आप में। न सिर्फ मजाक करना होता है, आप तवज्जो ही नहीं नहीं यार देते कोई तारक क्या चौहान कर साहब, रहा मैं तो अच्छे से सुन रहा हूँ बात, है। यार ना मजाक करो करने ऐसे। आते हैं आप ये सिर्फ। ये संजीदा गुफ्तगू हम कर रहे हैं, इसमें प्लीज इंटरप्ट ना करें। संजीदा लेकिन गुफ्तगू नजर थोड़ा ही आ सा रहा है, यार बार बार थोड़ा मैं सा, सवाल दोहरा रहा हूँ फिर भी आपको यार समझ तारिक नहीं आ चौहान साहब ऐसे ना करें, सलीम ऐसे ना करें साहब, अगर प्लीज। आपकी बात मतलब मेरी स्पष्ट बारी हो में ना रही है बोले, तो उनको नहीं मैं अब टोनी क्लियर साहब कर को रहा हूँ, इस बारी में थोड़ा सा इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे इस बारी में, हम ना बाहर निकल आ जाएंगे मसले से। शक हो थोड़ा रही है टाइम तो मैं दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। लोग भी नीचे बैठे हैं, वो देखे नीचे लिख रहे हैं, जबरदस्त इल्मी मुनाजरा जारी है, संजीदा गुफ्तगू है, इल्मी बात हो रही है, इसको जरा चलने दें, ये अच्छी बात है। चौहान साहब देखें, दो बातें अभी आपने एक की है कि पहले मैंने ये बताना है कि वो आपने ठीक हमारे कुरफा को हिजड़ा का या नहीं ठीक का, ये आपका एक सवाल है। दूसरा सवाल आपने मुझसे ये कहा था कि मैं ये साबित करूं कि जंबा साहब हिजड़े हैं, और तीसरा मैं हिजड़ा हूं कि नहीं है हूं, इसका मैं बताऊं, वो हिजड़े का आपने कुछ मेयार कायम किए थे। यही तीन सवाल है ना चौहान साहब? चौहान साहेब, फिर मुझे दोहराने पड़ेंगे क्योंकि आप फिर नए अब वो तरीके से जरा जवाब तफसील देंगे। से बताएं, आप तफसील से बताएं, कोई मसला नहीं, मैं तफसील से मैं बताएं मैंने आप। ये कहा था आपके खलीफा को हम हिजड़ा कहते हैं, और उसकी वजह अच्छा, ये है कि मुबाइला का चैलेंज खलीफा के घर में डाक रजिस्टर्ड डाक से भेजा और उसको कहा अच्छा, कि अगर तुम अपने आप को खलीफा अला मिनहाज नबूवत कहते हो, मैं भी कहता हूँ, तो ठीक है आओ अच्छा, मुबाइला करो मुझसे। खलीफा ने 2018 के बाद अब 7 साल गुजर चुके हैं, कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसके किसी पैरोकार ने जवाब दिया। चुनांचे अच्छा, खलीफा भी हिजड़ा साबित हुआ और उसके पैरोकार भी हिजड़े साबित हुए। मिर्जा साहब ने कहा है हाँ, मैदान में निकलना किसी मुखन्नस का काम नहीं। अच्छा, अच्छा, दूसरी बात मैंने जो बयान की है वो ये है कि आप लोगों को हिजड़ा मैं इसलिए कहता हूँ
कि आप सही बात बयान नहीं करते, अच्छा हक अच्छा को हक नहीं कहते, किज़ब को किज़ब नहीं कहते, दरमियानी राह अख्तियार करते हैं, और दरमियानी राह अख्तियार करने वाले को हिजड़ा कहा जाता है। हाँ तीसरी बात मैंने ये कही थी ठीक है कि ठीक है आपने जब ये बिल्कुल हो रहा कहा है ना कि देखें आप हमारे खलीफा को हिजड़ा कह रहे हैं, तो इसका मतलब है हम भी तो जंबा साहब को हिजड़ा कह सकते हैं, फिर आपको तकलीफ होगी। ये किसने कहा मैंने कहा है ये नहीं, किसने कहा है ये आपने कहा किसने था कहा है आपने कहा ये था मैंने कहा है ये हाँ जी, आपने ये कहा था देखा कि है अगर आप हमारे खलीफा अब को ये कहे तो जंबा साहब हम की अगर कसम खाए जंबा मैंने साहब को कहा ये ये कहें, अगर हम जंबा जंबा साहब को साहब ये की कहें तो कसम फिर खाए आपको आप कैसे लगेगा? अब जंबा साहब तो की उसका कसम मैंने खाए कहा मैंने ये था कहा है अगर जंबा साहब ने और रुक तो कोई जाए हिजड़ेपन का मुजाहरा किया है और आपके पास कोई सबूत है, जैसे मैंने आपके खलीफा के मुतालिक पेश किया, तो आप वो पेश कर दें। हाँ तीन ठीक तीन है सवाल समझ आ आपसे गए? अब मैं ये तीन सवाल हाँ समझ आ जी। गए। एक जंबा साहब को हिजड़ा साबित करना है, दूसरा मैं हिजड़ा हूँ कि नहीं ये बताना है, और कोई खलीफा हाल मतलब हिजड़ा नहीं है है, कि नहीं ये बताना है अकला आपने। अजीब है। ठीक है यही ये है ना मेरा ख्याल है आप सही मजाक कर मैं रहे हैं मेरे यार आप साथ। जवाब सुन लो यार अब आप कुछ नहीं नहीं कर रहे, यार फिर सिर्फ संजीदा बात हो रही आपके है लिए यार मजाक आप है। संजीदा बात है फिर मैं यार दोहराता हूँ संजीदा तो फिर बात आप हो रही है गलत ऐसे ना तरीके से करो उसको पेश करते छोड़ना हैं। इसका आप मतलब है दोबारा जानबूझ दोहराना के आप चाहते कर हैं रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं लोगों नहीं के यार पास। नहीं मैं संजीदा बात नहीं संजीदा बात हो रही है। अच्छा अब मैं बात कर लेता हूँ, वक्त को बचा लेते हैं थोड़ा सा, वरना आप अगर दोबारा दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं, आप ऑप्शन है आपके पास। बात ये है कि जंबा साहब को हिजड़ा अगर आप किधर गए तारिक साहेब, चांद साहेब, हाँ जाए चांद साहब, मुनाजरा जारी है, जाना नहीं है, सवाल समझाएं जरा ठीक से। ना करो आ जाते ने, किधर हौसला गए रखो, नेट का मसला हो जाता है, आ जाते ने मैदान किधर छड़ के गए नहीं जाते आगे साहब आगे आगे साहब आगे 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 नहीं नहीं मैदान छोड़ना तो मुखन्नस का काम है, उन्होंने आगे समझा दी है बात सारी। चांद साहेब, चांद साहब आपने कहा कि आप मुसलमानों को मुसलमान कहते हैं, काफिर नहीं कहते, तो मैं मेरी जात के बारे में आपने ये कहा, तो मैं ये मोहम्मद वलीद को, आमिर नजीर को, अब्दुल्ला को, मलिक इमरान को पक्का काफिर समझता हूँ, पक्का काफिर, पक्के काफिर हैं ये लोग। नंबर एक। नंबर दो, आपके मेरे ख्याल में वो जादवी लड़के के वालिद साहब का क्या नाम है? चौहान साहब थोड़ी मदद कीजिएगा। चौहान साहेब, चौहान साहेब, जादवी लड़के के वालिद साहब का क्या नाम है? अमीर जमात हमबर्ग। चौहान साहेब, वो हमजुल्फ का क्या नाम है? चौहान साहब नहीं है। चौहान साहब उनको मैंने कोई 2 महीने हुआ कहा हुआ है कि जंबा साहब को जरा हवा लगवाएं, और एक बात का मैंने उनको पूछा हुआ है और कहा हुआ है कि मुझे ये जंबा साहब से बात करवाएं और जंबा साहब से को कहें कि इसका जवाब दें, और 2 दफा मेरे ख्याल में बात हो चुकी है, तो जंबा साहब बाहर नहीं आए, तो उस असूल के तहत फिर साबित हो गया कि जंबा साहब भी हिजड़े हुए, हो गया साबित, और उसके सबूत मौजूद है। नंबर एक। नंबर तीसरा सवाल आपका कि क्या आप वो ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी उस बात से इख्तलाफ रखता हूं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। ये मेरे आपके 3 सवालात के जवाब हो गए, और लेकिन अगर आपने दोबारा दोहराने हैं, मैंने ठीक नहीं जवाब दिए, तो मौका आपके पास है, दोहराएं। हाँ जी, ये मुझे आप ये टोनी एक लौंडा लपाड़ा ये देखें जंबा साहब को कहे थे कि मेरे साथ फलानी पे बात करे, तो ये वही बात है भाई। जंबा साहब एक जमात के सरबराह हैं, मिर्जा मसरूर भी। मीर जमात ये ने अब मुझे क्या वापस तकलीफ है फोन मेरी किया। बात को, आपको क्या तकलीफ है? सुन नहीं सकते? चले आप कह रहे हैं मैंने जंबा साहब को कहा, तो इस तरह तो हजारों लोग कहते रहते हैं मैंने कहा। भाई जंबा साहब जमात अहमदी इस्लाम पसंद के सरबराह हैं, मामूर मिन अल्लाह हैं, 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, मसीह इब्न मरियम है। मिर्जा मसरूर कहता है मैं खुदा का बनाया खलीफा हूँ। इन लोगों ने तो आपस में एक दूसरे को मुबाइला किया। अब एक लौंडे लपाड़े उठ के गए, टोनी और आप जैसे लोग, जी जंबा साहब को हमने कहा है, फलाना है, हम बैत कर लेंगे। भाई हमारे लिए तुम जैसे लोगों की बैत की क्या है? आप लोगों के चैलेंज की क्या हैसियत रखती है? भाई मैंने टोनी को वो व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 दफा चैलेंज किया है, आके मेरे साथ बात करे। इस वक्त भी मैं इसको चैलेंज करता हूँ। अलीम साहब मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ, आए हम साबित कर दें आप कि ये जो मिर्जा मसरूर साहब है आयत इस्तखलाफ के मुताबिक खलीफा आला मिन हाजी नबूवत है। मैं आपको कहता हूँ मैं आपकी बैत कर लूंगा, हालांकि मेरी बैत की कोई हैसियत नहीं है।
लेकिन इधर मैं निकल वैसे गए कह रहा हूँ कि ये आपके में जुर्रत है इस चीज में भी। जम्बा साहब के साथ आप क्या बात कर सकते हैं, आप उनके पैरोकार के साथ बात नहीं कर सकते। कितनी दफा इस वक्त मैं कहता हूँ अगर टोनी में एक जान है, आप जम्बा यहाँ साहब की क्या साबित जरूरत है करें खलीफा मिनहाजुल से बात नबूवत में करने है, की? मिर्जा मसरूर के कई बंदे आते हैं। नहीं। मैं साबित करूंगा कि वो एक मुफ्ती अल्लाह है। जम्बा साहब का तो क्या असल मुकाबला बात ये खलीफा है के सामने? कि आप लोगों के चैलेंज की क्या है, ओ भाई जम्बा साहब ये